Good morning, children. Today's topic is Let's Speak, and the learning outcome of this chapter is that you will be able to identify the small and capital letters and recognize vowels and consonants in the given words and in the sentences. I know that you all are doing well in your studies and you all love to recite poems, stories, read stories and sing songs. But do you know that these songs, stories and all these poems are made up of words, and these words are made of letters. I know that you have read about these letters in the previous class, in the class 1, but you know that these letters are of different groups. I mean, like if I am talking about vowels and consonants, these are the different groups of words. So here I am going to tell you about these different groups and you will be able to know more about these letters and alphabets. So for this I have an interesting poem for you to recite. Come on, recite with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, X, Y, Z, sugar on my bread. If you don't like it, go to bed, bed, bed. In the morning, come to me, I will teach you A, B, C. Yes, it's about the alphabets. जो अल्फ़ाबेट्स आपने अपनी क्लास 1 में पढ़े हैं और ये अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं नंबर्स में और ये लेटर्स दो तरीके के होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स इन द कमिंग स्लाइड्स. बट बिफोर दैट आई विल गिव यू अ क्विक एक्सरसाइज टू डू. आपको इस जितनी भी ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं और इनके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको काउंट करना है और उनके नंबर्स को मुझे बताना है. लाइक वी हैव द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ PENCIL. So here are 6 letters in this word as I have already done for you. Next one is LION, lion. Lion is having 4 letters. Next word is PIN. So this is a pin. Pin. और आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 letters इस word में. हमारा next word है WATER, water. And water is having 1, 2, 3, 4, 5 letters. Next word is phone. फोन, यस, वही जिस पर आप बात करते हैं ना, PHONE, phone. And phone is having 1, 2, 3, 4, 5 letters. Now I have some other words also like cage, CAGE. It's having 4 letters. Next word is a little bit long, elephant, ELEPHANT, elephant. Elephant is having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters. Yes. The next word is universe. Universe. ये हमारे यूनिवर्स के बारे में है और यूनिवर्स इज हैविंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 again. 8 letters for universe. Universe माने ब्रह्मांड. और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड इज हॉलीडे, HOLIDAY. हॉलीडे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letters are there. Next word is bottle, BOTTLE, bottle. Bottle is having 1, 2, 3, 4, 5, 6 letters. So here I wanted to tell you that these words are made of different letters and these letters are called alphabets in our English language. These alphabets are 26 in numbers, but they have the different groups also. But before that I am going to tell you about the capital letters and small letters.
अभी आपने क्लास 1 में कैपिटल लेटर्स पढ़ा था। ये कैपिटल लेटर्स के वर्जन हमारे ए, ये आपने पढ़ा है, बी पढ़ा है, सी पढ़ा है, बट इन द कैपिटल फॉर्म। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स, हमारे ए का स्मॉल लेटर कैसे बनता है और कैसे ये आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं आपके सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ के बताऊंगी और आप इसके साथ साथ इसको पहचानेंगे भी। So here we have A in the capital form and A in the small letters form. Next is B. B is again in the small letter form. C is same as in the capital but a little bit small. C हमारा बस थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और वही बनता है। इसके बाद आता है हमारा D, but D we make it differently. D हमने अपने कैपिटल में ऐसे बनाया और स्मॉल लेटर्स में we just make this way. Next comes the E. The capital is with 3 lines. Now in the small letter forms you just make it this way. Now we have F and the small f also. We have G the capital one and the smaller one. H in the capital one and the smaller one. Here is I, but in the smallest form we have a dot over that. So this is small I. Here is J and J in the small form, small letters. So again we have K in the capital form and in the smaller form. Now we have L in the capital form and then in the small letters form. Now we have M और इसका छोटा m बनता है ऐसे। हमने 2 बार घुमाया गोल और ये बन गया हमारा M। फिर आती है हमारी बारी N की। कैपिटल हमने बनाया ऐसे और छोटे में हमने एक छोटा सा घर बनाया और उसको छोटी सी लाइन दे दी। नाउ वी हैव O, वेरी सिमिलर टू द कैपिटल फॉर्म, एंड O हमारा जो बड़ा जैसे बना था वैसे ही हमने छोटा सा O बनाया हमने अपनी स्मॉल लेटर्स फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा आता है P। जो P हमारा कैपिटल में बनता है वो आप ऐसे देख रहे हैं और यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 1। नाउ वी हैव आर P इन द स्मॉल लेटर्स फॉर्म, दिस इज़ लाइक दैट ओनली। और अब हमारा बनेगा Q हमारा कैपिटल जो बनता है O बनाया और उसमें एक नीचे हमने लाइन खींच दी, वो हमारा कैपिटल Q होता था और अब हमारा स्मॉल लेटर्स Q बनेगा ऐसे। नाउ वी हैव R इन द कैपिटल फॉर्म और R in the smaller form. Next is S, very similar to the capital one. S हमारा जैसा हमारा कैपिटल में बनता है बिल्कुल वैसे ही हमारा स्मॉल फॉर्म में बनता है। इसके बाद बारी आती है हमारी कैपिटल T की और कैपिटल T के साथ उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉल लेटर फॉर्म। या नाउ वी हैव U हमारा कैपिटल में ऐसे बना, नाउ U हम स्मॉल में बनाते हैं इस तरीके से। V सेम एज इन द कैपिटल फॉर्म, जैसे हमने कैपिटल में बनाया बिल्कुल वैसे ही स्मॉल फॉर्म में बनेगा। W इज सेम एज द कैपिटल फॉर्म और X भी हमारा बिल्कुल सिमिलर बनता है हमारे कैपिटल फॉर्म की तरह। और हमारी अब बारी आती है Y की। Y हमने अपने कैपिटल लेटर्स में इस तरीके से बनाया और हमने स्मॉलर फॉर्म में ऐसे बनाया। नाउ वी हैव Z एंड Z इज़ वेरी मच सिमिलर टू द कैपिटल लेटर्स फॉर्म। अब आपने ये कैपिटल लेटर्स देखे और इनको पहचाना कि कैसे हम A B C D E F G, how do we write these letters in the small letters form. Now I'll give you a quick exercise to do to recognize these matching letters with the respective capital letter. So here we have A B C D E F G in the कैपिटल फॉर्म और आपको इन कैपिटल लेटर्स के साथ उनके मैचिंग लेटर को यहाँ पर सर्किल करना है। यू हैव टू सर्किल द मैचिंग स्मॉल लेटर। तो हमारे पास द वेरी फर्स्ट वन लेटर इज ए और ए के लिए आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू द फर्स्ट वन आई हैव ऑलरेडी डन। आई हैव मेड अ सर्किल हियर इन द जो आपका मैचिंग लेटर है उसके ऊपर मैंने उसे सर्किल किया है। अब नाउ वी हैव बी।
तो बी का अब हमको रिकॉग्नाइज करना है इसमें से कौन सा लेटर है जो इसका स्मॉल लेटर है. बी is in capital form and now we'll have to find out the small letters form of B. Oh yes, हमने पढ़ा था और ये हमारा small letter form है. Yes, you are very much right कि हमारा small letter form B का ये वाला है. अब we have C and I've already told you the small c is very much similar to the capital C. So it is very easy to recognize that here is our C. Now we come to the D. और D part के लिए जैसा हमने बताया था कि आप D तो कैपिटल में ऐसे बनाते हैं, बट स्मॉल लेटर्स में आप पहले लाइन करते हैं और उसके बगल में एक सर्किल को एसोसिएट करते हैं. एंड हेयर वी हैव आर D. Now we come to the E. और E के लिए we have 3 lines in the capital form and जो small letter form है वो हमारी बिल्कुल ऐसे बनती है. और इसके बाद बारी आती है हमारी F की. F is little bit similar to the capital form और जो capital form में हम 2 lines के साथ बनाते हैं. Here we also make with 2 lines but in a different form like this. ये हमारा F है in the small letters form. और अब हमारी बारी आती है G की. G we have in the capital form like this and now we'll find out which one is G. This is not G, I know, this is H. Now we have this, looking like G I think, but here we have B, here we have O. So here is our option. We have small letter G like this. अब मैं आपको जो पिक्चर दिखाने जा रही हूँ उसको देखिए और please read out these words with me. Here I am taking the very first word. This is an apple. An apple. Second is a brinjal. A cup. A duck. An elephant. A fish. A girl. A house. An ink pot. Remember, an ink pot. A jasmine. A kite. A lotus. A mango. A gnat. An orange. What's that? An orange. A potato. A queen. A rose. A sunflower. A tomato. A van. A watch. An Xmas tree, a yak, a zebra. What did you get to see? We had read different kind of words and और हमने क्या करा, कुछ words के आगे हमने देखा कि जब हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो we do write A और N before that. But क्या ये आपने देखा कि आप A और N differently लगाते हैं? ये क्यों लगाया जाता है इसके बारे में I'll tell you in the next slide. As I already told you in the previous part of this chapter that we have different groups of letters and because of these different groups of letter we just use A or N before using these words in our sentences and like stories or like poems and जो भी आप song या जो भी चीज़ में आप इन words को use कर रहे हैं उसके पीछे A और N लगाते हैं. और A और N क्यों लगाते हैं? Just because of these 2 groups. We have vowels and consonants. As I already told you that we have 26 letters. कितने हमारे letters होते हैं? 26. टोटल हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उसमें से जो 5 लेटर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड वाल्स. A, E, I, O, U. These are called vowels. ये हमारे होते हैं टोटल 5. A, E, I, O, U. Remember, these are called vowels. और जो रिमेनिंग 21 हैं वो हमारे कहलाते हैं consonants.
वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। और जब हम अपने वर्ड्स में वी यूज़ वाल्स, तो वाल्स से जो स्टार्टिंग हो रही होती है हमारे सेंटेंस की, या सॉरी वर्ड्स की, जो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने वर्ड्स को, वो वर्ड्स अगर वाल से शुरू हो रहा है तो वी यूज़ एन बिफोर दैट। लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक एन, where is that? An elephant. An elephant. Elephant is starting with E. और हम इसके आगे यूज कर रहे हैं N. इसके बाद बारी आती है an ink pot. An ink pot. Ink pot is starting with I and I is also a vowel. So हम फिर इसके साथ यूज कर रहे हैं N. Has again an orange. An orange. Orange is starting with O and O is a vowel और vowel के साथ हम यूज़ करेंगे N और इसीलिए हमने इन सारे वर्ड्स के आगे लगाया है N. So we have 26 total alphabets. Out of them 5 are vowels and 21 are consonants. Now I am going to read a conversation of Razia and John. ये आपको मैं दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, उनका कन्वर्सेशन पढ़ के सुनाऊंगी और आपको बताना होगा दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दे गेट टू सी इन द पिक्चर। वो जो पिक्चर में देख रहे हैं उन सेंटेंसेस और उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ कम एंड रीड विद मी। जॉन सेज गुड मॉर्निंग रजिया। जॉन रजिया से कहता है गुड मॉर्निंग। Razia says, good morning, John. John says, what do you see in these pictures? वो क्या बोल रहा है? John क्या पूछ रहा है? What do you see in these pictures? तुम क्या देखती हो इन पिक्चर्स में? Razia says, I see a man, a fan, a tall man. A tall man. Tall means लंबा आदमी. मैंने एक आदमी देखा, एक पंखा देखा और एक लंबा आदमी देखा। I see a hen, a pen and a fat hen also. So she sees a hen, a pen, a fat hen. Now we come to the next sentence. Razia sees a bin, a tin, a small bin. उसने एक बिन देखा, डब्बा देखा, एक टिन देखा और उसके एक छोटा सा डब्बा देखा, स्मॉल बिन। कूड़ेदान का बिन होता है ना, जैसे डस्टबिन, वैसे ही एक डिब्बा, एक कंटेनर जैसा डब्बा उसने देखा, स्मॉल बिन जो छोटा था। शी सीज अ बोट, अ कोट एंड अ रेड कोट। लुक एट दिस। She sees a boat, a coat, a red coat. उसने एक बोट देखी, एक कोट देखा और कैसा कोट देखा? एक रेड कोट देखा। Now we have another line like this. Rajia sees, रजिया ने क्या देखा? A hut, a bus, a big bus. उसने एक बस देखी, उसने एक हट देखी और एक बड़ी बस देखी। अब हम जानेंगे और इसको हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अब मैं आपको एक क्विक एक्सरसाइज कराऊंगी। यू विल हैव टू एसोसिएट ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स। लाइक इफ वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन आवर सेंटेंसेस, व्हाट वी विल यूज बिफोर दैट। लाइक मैंने आपको बताया कि वी यूज़ ए और एन डिफरेंटली विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लाइक वी यूज़ एन बिफोर द वाल्स and A before the simple consonants. So हम अभी यहाँ देख रहे हैं boat, B-O-A-T. Boat is starting with B. So there is no use of using N before that. So we will use a boat. Now we come to our boy. Boy is starting with B. So we have to use A before this boy. We have apple here. So what we'll do? We'll use N before that. क्योंकि हमारा जो एप्पल है वो शुरू हो रहा है
A से, and A is a vowel. Now we have a bell. A bell के साथ हम यूज करेंगे A because it is starting with a consonant. अब आपने इतना कुछ सीखा, जो आज आपने सीखा है हम उसके बारे में बात करेंगे. लाइक आई टोल्ड यू दैट वी हैव 26 अल्फ़ाबेट्स, 26 लेटर्स आपने पढ़े, एंड यू हैव लर्नड अबाउट द कैपिटल फॉर्म्स ऑफ दीज लेटर्स ऑल्सो. लाइक मैंने स्मॉल लेटर्स आपको आप पहले नहीं पढ़ कर आए थे. यू रेड अबाउट दीज कैपिटल लेटर्स इन द क्लास 1 एंड नाउ मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि इस कैपिटल लेटर्स की स्मॉल फॉर्म्स किस तरीके से हम बनाते हैं. हमारे पास जो 26 लेटर्स हैं, वी हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स इन दीज लेटर्स ऑल्सो. लाइक वी हैव 5 वाल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. 5 वाल्स हमारे कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. कितने हैं नंबर में? ए, ई, आई, ओ, यू. 5 वाल्स. और 5 वाल्स के बाद जो हमारे 21 लेटर्स बचते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स हमारे जो ए ई आई ओ यू को छोड़ने के बाद जो हमारे 21 वर्ण या हमारे लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. उनके साथ हमको ए यूज़ करना होता है. एंड विद द वाल्स वी यूज़ एन बिफोर दैट. द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वाल्स वी यूज़ एन. और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज़ और नोट कराना चाहूँगी कि वाल्स में हम यूज़ करते हैं, बट जहाँ वाल्स की साउंड आ रही होती है हम वहाँ भी एन यूज़ करते हैं. सो इट इज़ जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये कीप दैट इन योर माइंड. In the senior classes you will get to know more about the difference between the vowel sound and the vowels words. So the words starting with vowels. और इसके बाद अब हम जो करने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज है जिसमें you'll have to fill in the gaps by using correct vowels. आप इन जो एक्सरसाइज है इसमें आपको अपने vowels को फिल करना है. आप ये vowels कौन कौन से थे? We had 5 vowels. कौन कौन से? A, E, I, O, U. और अब आपको इन्हीं 5 वाल्स में से किसी एक वाल को लेके अपने इस वर्ड को कंप्लीट करना है. सो रिमेंबर दैट हमारे ये 5 वाल्स हैं. इन 5 वाल्स में से आप कोई भी एक यूज़ करेंगे और इन वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ कैप. टोपी जो हम लगाते हैं, और टोपी को हम किस वाल्स के थ्रू हम इस गैप को फिल करेंगे ज़रा बताइए तो. किसकी आवाज़ आ रही है इसमें? कैप, कैप. यस, यहाँ आवाज़ आ रही है हमारे ए की. यहाँ हम फिल कर रहे हैं ए. हम इस गैप में कैप के साथ हम अपना वाल जो यूज़ करेंगे वो है कैप, और कैप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ए. ए हमारा जो वाल है उसको उस वर्ड को कंप्लीट कर रहा है. नाउ वी हैव अनदर वर्ड, वी हैव कप, एंड कप is going to be completed by the use of U. We'll use U here. Now we have another picture of net. Net इससे बटरफ्लाई पकड़ते हैं, या हम कभी जैसे गांव में आम वगैरह तोड़ते हैं तो इसके अंदर आके गिर जाता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता. तो दिस इज़ अ नेट, जाली. और इस नेट को कंप्लीट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपने किस वाल को? वो वाल है नेट. एट, ई, ए की आवाज़ आ रही है, और ये हमारी होती है कंप्लीट, NET, नेट. नेक्स्ट हमारा जो है पिक्चर इज ऑफ अ पेन. पेन. पेन कैसे यूज़ करते हैं आप? लिखने के लिए ना. और हम इस पेन को कंप्लीट करेंगे अपने एक वाल को यूज़ करके. वो कौन सा वाल होगा? आइए देखते हैं. पी, याद आया? P-E-N, pen. Yes, this vowel is E. We'll complete this word with E, and E is a vowel.
As I already told you, fill in the gaps by using correct vowels. Next picture is of a leg. So we will complete it with a vowel. And which vowel is this? कौन सा vowel हम use करेंगे इसमें? हम vowel use करेंगे E. L-E-G. Leg माने हमारा पैर या टांग. अब हमारा नेक्स्ट पिक्चर है इज ऑफ रैट. चूहे की पिक्चर है, रैट. और रैट के लिए हम क्लास 1 में भी पढ़े हैं इसकी स्पेलिंग को. कौन सा वाला वाल यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ए. कौन सा वाल है हमारा? ए. एंड रैट इज गेटिंग कंप्लीटेड विद द यूज ऑफ ए. सो वी हैव कंप्लीटेड दीज वर्ड्स विद द यूज ऑफ दीज वाल्स. और हमने इस वाल्स की प्रैक्टिस के बाद अब हम आते हैं अपने होम असाइनमेंट में, जो आपको अपने घर पे कंप्लीट करना है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट्स, किसी की भी आप हेल्प ले सकते हो. और यू हैव टू डू व्हाट, लाइक यू हैव टू सर्किल द कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन वर्ड्स. ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं आपको उसमें कॉन्सोनेंट्स को सर्किल करना है. दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूजिंग द वाल्स और सर्कलिंग और फाइंडिंग आउट द वाल्स. सो हेयर यू विल हैव टू फाइंड आउट कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स आप निकालेंगे इन वर्ड्स में से. सो अगर कॉन्सोनेंट करना है तो मैं आपको एक कॉन्सोनेंट निकाल के अभी फॉर एग्जाम्पल दिखा देती हूँ. बट in the homework copy you'll have to do it yourself, or with the help of, you can take help with from your elder sister, brother or parents. आप यहाँ पर circle the consonants in the given words. अब हम कैसे circle करेंगे मैं बताती हूँ. G-O-A. We have 3 letter word. यहाँ पर 3 letters हैं हमारे G-O-A. 3 letters को use करके हमने ये word बनाया है G-O-A. गोवा. गोवा में से हमारा O और A हमारे vowels हैं. तो बचा कौन सा हमारा? जी. जी इज कॉन्सोनेंट. आपको अपने होमवर्क कॉपी में इसी तरीके से करना है और आपको ये कॉन्सोनेंट्स इसी तरीके से अपने कॉपी में फाइंड आउट करके अलग से सर्किल करने हैं. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट होम असाइनमेंट in which you will have to find out the vowels in the given words. अब आपको इन vowels को कैसे find out करना है? अब मैंने आपको vowels बता दिए थे कि हमारे पास 5 vowels है A, E, I, O और U. इन 5 vowels को आपको इन लेटर्स, इन वर्ड्स में जो डिफरेंट लेटर्स से बने हुए हैं इनमें आपको चूज़ करना है और आपको ये अलग से लिखने हैं. जैसे वी हैव एरोप्लेन, AEROPLANE. इसमें अगर AEIOU कहीं भी आया है तो आपको उन vowels को निकाल के अलग रखना है. और जब आपकी नेक्स्ट क्लास तक लॉट्स ऑफ लव. कीप डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली और ममा को परेशान नहीं करना है, बिकॉज आई नो दैट यू आर ऑल आर स्टेइंग एट होम. सो डोंट मेक सच नॉइज. टिल नेक्स्ट, बाय बाय.